Hello students of class 12. Welcoming back to the third part of the chapter, that is the molecular genetics. We have already been knowing that how the structure of DNA is formed. What is DNA? That is, it is a polynucleotide chain. Now what is the function of the DNA? Now we know that DNA is also considered to be the genetic material. Now what does this mean? From the parental generation, this is your parental generation, the male and the female, both the gametes unite together to form the zygote. Their nucleus will combine together, forming the zygote. And now when the zygote will be through the embryogenesis, it will be becoming a fetus, and finally after birth it will be having the stage of the child, the adult, all the lifespan of an organism we can observe over here. Now each and every characteristic which a child has, like the color of the hair, the body structure, the height, each and every character has a resemblance to either of the parents. Now, I would like to just say that there is something which is carrying on the information from the parental generation to the offspring, and that information is carried out by the DNA. Okay? So now today we will be seeing that how the DNA gets expressed. All the information of the characters, information for the characters are stored in the DNA. Now we will say how this expression of the characters are happening. So for that we have to just consider one thing. We have to study about the process of protein synthesis. Okay, clear? So we will be starting with the basic molecule, that is the DNA. So suppose this is your DNA structure. Okay? Now, first of all, what is happening? The DNA is getting converted into a single stranded, which I will be knowing as the RNA. So I can write over here, this is your DNA, and DNA getting converted into the RNA. So some information is shared to the RNA, and finally RNA becomes the information which is stored in the RNA, it gets converted, and then a protein is formed. Okay, so there are two stages which we need to consider. We have DNA है आपका. DNA के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन पास होता है किसके पास? आरएनए के पास. ठीक? और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके कैसे कैसे प्रोटीन्स बनेंगे. प्रोटीन क्या है सर? इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड्स. तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है, मतलब क्या है? दिस इज अमाइनो एसिड 1, this is amino acid 2, this is amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5 and amino acid 6. Okay, so this protein which is formed, it consists of 6 amino acids. Now how will this amino acid be clubbing together? कैसे ये amino acid जुड़ेगा एक साथ और तब जाके एक प्रोटीन बनेगा. हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोटीन का दरकार पड़ेगा, तो कब क्या प्रोटीन बनेगा वो इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा? वो इंफॉर्मेशन रहेगा डीएनए के पास. क्लियर है? तो डीएनए को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज द मास्टर कॉपी. लिख सकते हैं या नहीं? ठीक, क्लियर? और ये मास्टर कॉपी हर बार पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन तो कुछ शेयर नहीं करेगा, वो आरएनए के जरिए यही इंफॉर्मेशन शेयर करेगा प्रोटीन कैसे करके बनेगा उसका.
ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज अ टेम्पोररी कॉपी। टेम्पोररी कॉपी, जिस टेम्पोररी कॉपी का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, एक प्रोटीन के माध्यम से निकल के आएगा। अब समझिए, हम लोग सपोज करिए आपके पास एक बहुत महंगा बुक है, ठीक, और उस बुक के अंदर ऐसे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मतलब आपके बहुत रेफरेंस बुक्स में दिखाई देता है, तो वो आपकी किसी दोस्त, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो बोला कि हाँ प्लीज मुझे वो बुक दे दीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको फिर रिटर्न कर दूंगा। क्लियर? आपके दिमाग में रहेगा कि अगर ये बुक गायब हो जाए तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलेगा भी नहीं। आप क्या करोगे? आप दोस्त को नाराज भी नहीं कर सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि क्यों ना उस बुक के पेजेस का फोटो कॉपी करके और आप फ्रेंड को फोटो कॉपी दो। वो फोटो कॉपी मतलब क्या है? बुक इज द मास्टर कॉपी जो आपके पास है, दैट इज द डीएनए विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक, बट डीएनए इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन डायरेक्टली। डीएनए क्या कर रहा है? एक टेम्पोररी कॉपी बना रहा है, तो दैट टेम्पोररी कॉपी हम लोग बात कर सकते हैं एज अ फोटो कॉपी। तो वो जो फोटो कॉपी के मटेरियल्स हो गए, दैट एक्ट्स एज द आरएनए। अब वो पूरे के पूरे फोटो कॉपी जब आप देते हो अपने दोस्त को पढ़ने के लिए, उसको गो थ्रू करता है दोस्त, और अपने हिसाब से वो अपने नोट्स बनाता है अपने अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। तो वो जो नोट्स हो गया, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट जो उस दोस्त को समझ में आया। तो उस नोट्स को जो वो दोस्त देख के बना रहा है फोटोकॉपी को, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो डीएनए विल बी देयर, डीएनए कन्वर्टिंग इनटू आरएनए एंड आरएनए विल बी कन्वर्टिंग इनटू द प्रोटीन। ठीक, यहां पर ये जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं सर, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नेम्ड एज द सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस। What is this process known as? It is known as the central dogma. Like how the DNA is converted into RNA and RNA converting into expressing itself in the form of a protein. Okay? This was first given by Francis Crick. Okay, who gave this central dogma theory? It was given by Francis Crick. Clear? And there are two basic parts of it. One we will be studying in the form of transcription, and the other will be studied in the form of translation. Clear? So, what do you mean by transcription? The conversion of DNA to RNA will be said to be transcription, and translation will be from the RNA by using a code language. All the amino acids will be assigning themselves, and between the two amino acids they will be linked by a peptide bond, and similarly when lot of amino acids will be joining themselves, what will be producing? A polypeptide chain or a protein will be formed. Clear yahan tak? Okay, so we have said that we have gone through the central dogma process, ki how the DNA converts into RNA, RNA will be getting converted into the protein. Now tell me one thing, if protein is needed to be synthesized in our body, then why do we eat the protein and get it digested? प्रोटीन अगर हमारे बॉडी के दरकार है, तो प्रोटीन जो हम लोग खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने की क्या जरूरत है? सर उसको डाइजेस्ट होने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो प्रोटीन दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग प्रोटीन होगा सर, जो अलग अलग फंक्शंस करेंगे उनके बॉडी के अंदर, है या नहीं? हम लोग मेनली क्या करते हैं? हम लोग मेनली जो खाते हैं दैट इज आइदर द एनिमल प्रोटीन और वी टेक प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जनरली जो आपके नॉनवेज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ फिश, इन द फॉर्म ऑफ मीट, उसके पास से आपके एनिमल प्रोटीन मिल रहा है। और प्लांट प्रोटीन मतलब जो दाल खा रहे हैं, जितने भी हम लोग लेग्यूम्स खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो नाउ दिस टू प्रोटीन्स व्हेन दे एंटर इनटू आवर बॉडी, द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ये करता है कि जो भी आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, वो इसी प्रोटीन को किसमें तब्दील कर दे रहा है?
into a lot of amino acids. समझ में आ रहा है? ठीक, मतलब क्या है? और यही अमाइनो एसिड्स थ्रू द ब्लड हमारे सेल के पास पहुंच जा रहा है इन द साइटोप्लाज्म. यही अमाइनो एसिड्स हमारे साइटोप्लाज्म में पहुंच गया. मतलब क्या? इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो अमाइनो एसिड्स होंगे, द अमाइनो एसिड्स हैव एंटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ आवर सेल. क्लियर? ठीक. अब हमारे बॉडी को अंदर क्या चाहिए? प्रोटीन बनना है. प्रोटीन किससे बनेगा? अमाइनो एसिड से बनेगा. तो अमाइनो एसिड्स तो यहां पे आ गए. नाउ, और कैसा प्रोटीन बनेगा वो किसके पास है? इंफॉर्मेशन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड थ्रू द न्यूक्लियर पोर this RNA will be coming out. This RNA, what does it have? It has the language, the codes through which all the amino acids will be joining together. Clear? तो ये जो RNA आपका आ रहा है यहां पर, यही RNA बाहर निकला कहां पर? From the nucleus it is coming inside the cytoplasm. अब इसके पास कई सारे कोड्स होते हैं सर. क्या होता है? कोड होता है, जो इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड. और तब इस कोडिंग के ऊपर डिपेंड करके एक एक अमाइनो एसिड आके और यहां पर जुड़ना चालू होता है. तो इस कोड के लिए एक अमाइनो एसिड आया, इस कोड के लिए दूसरा अमाइनो एसिड आया, और जैसे ही तो अमाइनो एसिड आ जाएगा पास, एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक. और ऐसे करके कई सारे अमाइनो एसिड्स जब जुड़ जाएंगे तब आपका बन जाएगा क्या चीज? एक प्रोटीन बन जाएगा सर. अंडरस्टैंड? क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग? वी टेक इन प्रोटीन. इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन. दैट प्रोटीन आर गेटिंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, एंड आफ्टर डाइजेशन of proteins, what is the byproduct, like the end product of the digestion of proteins? That is amino acids. These amino acids through the blood are coming and they are getting inside the cell. So there are a lot of amino acids which are in the cytoplasm. Clear? So the information of which amino acid will be arranging into at what place, कौन से amino acid कौन से जगह पे बैठेगा, वो information किसके पास है? एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड द डीएनए. वो डीएनए सबसे पहले बनाएगा आरएनए, और वो आरएनए थ्रू द न्यूक्लियर पोर इट विल बी कमिंग आउट एंड इट विल बी एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म. ठीक. अब जैसे जैसे उसके पास, आरएनए के पास क्या होता है? कोड होता है, जो आप लोग अभी पढ़ेंगे. वो कोड के हिसाब से वो अब एक एक अमाइनो एसिड को लेके और एक धीरे 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 प्रोटीन चेन बना लेगा, जिस प्रोटीन चेन को ही दरकार पड़ेगा आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हुआ. ठीक. अब ये अमाइनो एसिड जो आपका चेन बना यहां पर, ये किसी ना किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करेगा. ठीक. ये किसी ना किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ. कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द जेनेटिक कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर द साइंटिस्ट हु गेव दिस जेनेटिक कोड, एंड द नेम इज Gamow. Gamow was a very brilliant scientist, as he was a physicist, a biologist, as well as a biochemist. Okay, so he was a great scientist to give the concept about the genetic code. Now let us understand what is this genetic code and how is it useful. Now suppose this is your DNA, the double stranded. One will be from 5 prime to 3 prime and the other will be from 5 prime to 3 prime. Suppose I am writing A, T, C, G, C. So if I know one strand, I can easily write the other strand, the complementary strand, that is A will be having with T, T will have with A, C to G, G to C and C to G. Okay. So these two
nitrogen bases are attached together with the help of hydrogen bonds. We have already studied this in the previous video. Now what I say, that this DNA will be undergoing the process of transcription, and after transcription it will be forming a single stranded RNA. Okay, so first of all the hydrogen bonding will be broken down, and from the DNA there will be a RNA which will be produced. So suppose if I take any of the two strands which will be getting converted into the RNA, suppose if I take this one, okay, so here is T, so what will be over here? T will not be coming, because since it is a RNA there will be uracil, so here it will be U, here A, so A will be there, G will be there, C, G, okay, clear? And this will be also from 5 prime to 3 prime, because I have taken this strand. So this is your RNA. Now these are the codes through which the type of amino acid will be forming. Clear? So how is this coding done? Now we have to remember total amino acids which are present in our body. That is the total amino acids which exist in the body of any organism. We have to remember this number. It is 20. So how many amino acids are there? There are 20 amino acids. Okay, so by these 20 amino acids, grouping them, rearranging them in different ways, a lot of kind of proteins can be synthesized. Amino acids can be repeated also. Okay, so they will be forming a protein chain. So now which amino acid will be joining? Like if we say this is amino acid 1, this is amino acid 2, ऐसे करते करते this is amino acid 20. कौन सा अमाइनो एसिड पहले बैठेगा, कौन से अमाइनो एसिड बाद में बैठेगा? सपोज करिए इससे आपका जो प्रोटीन बना वो ऐसा बना. सपोज यहां पे अमाइनो एसिड 3 बैठा, यहां अमाइनो एसिड 4 बैठा, यहां अमाइनो एसिड सपोज करिए 16 बैठा, और यहां पे अमाइनो एसिड 1 बैठ गया. मतलब कोई भी आपके रीअरेंजमेंट हो सकता है अमाइनो एसिड्स के ऊपर, ठीक? और हर बार ऐसे अगर अमाइनो एसिड्स अलग अलग बैठेगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स विल बी फॉर्मिंग. अंडरस्टूड? क्लियर? सो अब हमें पता करना है कि ये जो अमाइनो एसिड बैठ रहा है यहां पर, कौन इसको बता रहा है कि हां पहला तो आपका अमाइनो एसिड 3 ही बैठेगा, उसके बाद अमाइनो एसिड 4 ही बैठेगा. ये जो इंफॉर्मेशन है यही कोड लैंग्वेज के बाद ऊपर आपके एक आरएनए के ऊपर रहता है. क्लियर है? और उसी कोडिंग को फॉलो करते हुए जब कोड डिकोड होगा तब अलग अलग अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस के अंदर बैठेगा और एक पूरा प्रोटीन चेन बन जाएगा. आया समझ? क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो जेनेटिक कोड है ये एक्चुअली होता क्या है. हमें पता चल गया टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 है, ठीक? अब क्या ये कोड सिंगल लेटर का है, क्या ये कोड डबल लेटर का है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ना गैमाओ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. इन्होंने बोला कि अगर कोड पता चल रहा है आरएनए के अंदर, और ये कोड क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपके कोड बनेंगे, ठीक? तो आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस है? ए, यू, जी और सी. ये 4 आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं किसके अंदर? आरएनए के अंदर, ठीक? अब सपोज करिए अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ कोड, दिस इज अनदर कोड, तो यहां पे कितने कोड हुए आपके? 4. तो अगर 4 कोड्स है तो 4 कोड तो सिर्फ 4 ही टाइप के अमाइनो एसिड बनाएगा सर. तो वॉट एवर हमको अभी कितना पता है कि कितने टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर. सो द जेनेटिक कोड कैन नेवर बी सिंगलेट. सिंगलेट मतलब कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल
लेटर वाई। 4 ही बेसिस है ना, तो 4 बेसिस कितने बनाएंगे सर? 4 ही अमाइनो एसिड अलग बना सकता है कि आपके अगर 4 करके है तो बस अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड है, हर जेनेटिक कोड 2-2 लेटर्स करके होते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं कि डबलेट फॉर्म में है, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग AUCG और इधर भी AUCG ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या बैठेगा? A और A, वैसे करके यहां पे क्या? A और U, A और C, A और G, UA, UU, UC, UG, ऐसे करके आपका पूरा हो जाएगा। कितने कोड्स बन रहे हैं सर इसमें भी? अगर मैं डबल डबल करके पकड़ता हूं तो कितने टोटल कोड्स बनेंगे? ये 4 और ये 4, मतलब 4 इंटू 4 करके टोटल 16 कोड्स बन पाएगा। अमाइनो एसिड कितना है? 20। तो ये भी गलत हो गया सर, मतलब ना तो सिंगल हो सकता है ना ही डबलेट हो सकता है सर, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब उसने किया कि उन्होंने बोला कि ओके, फिर हम लोग एक बार ट्रिपल करके देख लेते हैं कि अगर सपोज करिए आपके ट्रिपलेट करके हो रहा है तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर तो लिखे वही सेम चीज AUG और C, और उसने एक टेबल बना दिया। और यहां पर भी उन्होंने AUG और C ऐसे करके किया। यू विल से सर आपने तो अभी यही सेम चीज ड्रॉ किए थे, ये तो 14, मतलब आपका 4 इंटू 4 16 स्क्वायर्स बने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहां पर भी हर एक कॉलम के अंदर AUG और C ले लिया था। मतलब क्या हुआ आपका, अगर मैं ऐसे करके कॉलम बनाता हूं तो ये आपका एक रो बन गया, ये आपका सेकंड रो बन गया, और ये आपका तो थर्ड रो बन गया। मतलब टोटल कितने हो गए बॉक्स? एक बॉक्स के अंदर 4 हो गया। तो पहला जो आपका कोड हो रहा है वो कितना हो रहा है? ए और ए, तो ट्रिपल हो गया, ए हो गया आपका एक कोड। अगर मैं इसकी बात करूं, AU और यहां से G, अगर मैं इसकी बात करूं AC एंड C, तो ठीक ऐसे ही करके हर बार AUGC AUGC AUGC, तो हर बार करके कितना मिल रहा है उसको? 4 इंटू 4 तो पहले ही था सर, उसके साथ और आपके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल बन गया कितना? मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि देयर आर टोटल हाउ मेनी कोडॉन्स। इसको कोडॉन्स नाम देते हैं हम लोग, इसको हम लोग फिर टोटल बोलते हैं कि अगर ट्रिपलेट हो रहा है तो द टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड दैट इज 64। अमाइनो एसिड्स कितने थे? न देयर वेर 20 अमाइनो एसिड्स। तो नाउ इट मेक्स सेंस दैट ये जो 64 कोडॉन्स है यही आपके अलग अलग करके 20 अमाइनो एसिड्स को आराम से कोड कर सकता है। जिसका मतलब क्या है, कभी कभार यह भी हो सकता है कि एक ही आपका अमाइनो एसिड कई सारे कोडॉन से कोड हो सकता है। वन अमाइनो एसिड विल बी हैविंग मोर देन वन कोडॉन, वो भी हो सकता है इसमें पॉसिबल। क्लियर? ठीक। तो आपको जेनेटिक कोड हम लोग पढ़ रहे थे, कौन साइंटिस्ट दिए? गैमाओ। क्लियर? द प्रॉपर्टी विच ही टोल्ड दैट ऑल द जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। जेनेटिक कोड कैसा होगा? दे आर ट्रिपलेट इन नेचर। मतलब अगर हम लोग एक आरएनए की बात करते हैं और इस आरएनए के ऊपर सपोज करिए यू जी सी ए यू जी यू सी जी
यू ए, कोई भी आपका एक पैटर्न ले लीजिए, तो कोडिंग क्या क्या होगा ना, ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट करके आपके कोड्स बनेंगे। मतलब यू जी सी आपका एक अमाइनो एसिड कोड करेगा, ए यू जी दूसरा अमाइनो एसिड कोड करेगा, यू सी जी एक दूसरा अमाइनो एसिड कोड करेगा, और ऐसे करके वो चलता रहेगा। मतलब क्या है, जो भी आपके कोडॉन्स हो रहे हैं, ठीक, वो किस में कितने लेटर्स मिला के हो रहा है आपका, कितने नाइट्रोजन बेस मिला के हो रहा है, 3 तो इसीलिए हम लोग जेनेटिक कोड को लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रिपलेट इन नेचर्स। क्लियर है? चलिए, हम लोगों को पता चला कि टोटल कितने आपके कोड्स होंगे सर ना, देयर आर 64 कोडॉन्स which will code for 20 amino acids। यही तो देखा था हम लोग। अब आपको पता चलेगा कि ये जो 64 कोडॉन्स है, इस 64 कोडॉन्स के अंदर 64 ही आपके 20 अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकते हैं। कितने कोड कर सकते हैं? दैट इज ओनली 61 कोडॉन्स। सो आउट ऑफ दिस 64 कोडॉन्स there are only 61 codons who will code for these 20 amino acids, and we name these 61 codons as the sense codons. What do we name them? We name them as the sense codons. Okay, so how many are left? There are 3 codons which will not synthesize any of the amino acids. Clear? They are known as either the nonsense codons, or they will be very useful in stopping or terminating the protein synthesis, and therefore they are also known as the stop codons। क्लियर है? क्या बोला मैंने ना, टोटल कोडॉन्स कितने थे? 64 कोडॉन्स थे। अभी हम लोग देखे थे कि हाँ, वो ट्रिपलेट करके 4 into 4 into 4 करके टोटल 64 कोडॉन्स हुए। ठीक, अब इस 64 कोडॉन्स के 64 आपके 20 अमाइनो एसिड्स नहीं बना पाएंगे। उसमें से जो 61 कोडॉन्स है वही सिर्फ आपके 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, जिस 61 कोडॉन्स को हम लोग नाम देते हैं सेंस कोडॉन्स। बाकी के जो 3 कोडॉन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, सिंस दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? ठीक, बट इनके भी आपके काम क्या रहेगा ना, अगर आपके कोई भी एक आरएनए के अंदर एक सीक्वेंस में आपके मान लीजिए पहला आपका एक कोडॉन था, सेंस कोडॉन था, जिससे आपका एक प्रोटीन बना, दूसरा सेंस कोडॉन था, उससे भी आपका एक अमाइनो एसिड बना, ऐसे करके अमाइनो एसिड बनते जा रहा है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता जा रहा है। अब अचानक अगर एक स्टॉप कोडॉन आ गया है, तो आपका स्टॉप का मतलब क्या है? रुक जाना। तो वो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस को वहीं पे स्टॉप कर देगा। क्लियर है? तो स्टॉप कोडॉन्स का क्या फंक्शन है? दे टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, what will be the function of the stop codons? They will be helping to terminate the protein synthesis। काफी बार क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से आपके ये कोडॉन्स है, ये जो 3 कोडॉन है जिसको हम लोग स्टॉप कोडॉन लिखते हैं, ये कौन से है? ठीक, फॉर दैट यू विल बी रिमेंबरिंग वन जनरलाइज पैटर्न। आज आ जा। क्या बोला मैंने? आज आ जा। क्लियर? ठीक है, आपको ये सेंटेंस याद करना है, आज आ जा। बट एक ध्यान रखना है कि आज में तो आप जे लिखते हो, बट यहां पे जे को आप रिप्लेस कर दोगे विद अ जी। क्लियर? और सबके साथ आप एक यूनिवर्सल यू लगा दोगे। क्लियर है? ठीक, तो आज आजा ये सीक्वेंस मिल जाएगा, और सबके पहले आपका क्या लगा दोगे आप? यू। तो ये जो 3 कोडॉन्स है, दिस 3 कोडॉन्स विल बी योर स्टॉप कोडॉन्स, विच विल टर्मिनेट एनी
प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? तो आपको यह समझ में आ गया कि देयर आर 61 कोडॉन्स विच आर द सेंस कोडॉन्स दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स, दैट इज अमाइनो एसिड्स। क्लियर? और देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स जो क्या करेगा ना, जिसका आपका प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए काम आएगा। क्लियर? कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। क्लियर? मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह एक फॉर्मूला टाइप बता दूंगा जिससे आप सारे के सारे 7 जो प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड के वो आप आसानी से याद रख सको। क्लियर है? तो कल मिलते हैं।